ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਹਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ
सचखंड वासी संगीत आचार्य उस्तादां दे उस्ताद रागी जसवंत सिंह जी तीबर, जिन्हां दा नगर कुलार तहसील जगराऊं जिला लुधियाने विच है, उन्हां दी 37वीं सालाना याद नूं ताज़ा करते हुए आपां सारे मिल के हाज़री भर रहे हाँ। भावें उन्होंने जो इस संसार तो अपना पंज भौतिक शरीर की त्याग किया सी, शरीर का वो 24 दिसंबर 1983 का दिन सी, लेकिन हर साल उन्होंने याद नूं ताज़ा करने के लिए उन्होंने बेअंत शागिर्द जिहड़े देश विदेशों में विचर के महान सेवा गुरु घरां दी शब्द कीर्तन दी निभा रहे हैं। सो उन्होंने मिल करके संतां के सहयोग के नाल हर साल उस्ताद जी की याद नूं समर्पित गुरु के दर दे उत्ते शब्द कीर्तन के नाल हाज़री भरन का जो उपराला लगातार करते आ रहे हैं। वक्को वखरे स्थानों ते जिथे जिथे उन्होंने गुरु घर की महान शब्द कीर्तन की दात बख्शिश की, भावें उन्हां दा जन्म 10 जुलाई 1913 सत्कारयोग पिता सरदार केहर सिंह जी, माता राज कौर जी के गृह विखे पिंड कुलार उन्होंने जन्म लिया। अजे छोटी उम्रे सी जदों उन्होंने चंद्री बीमारी चेचक जिन्हों असी माता दी भी जो बीमारी नाल याद करते हाँ, ये माता निकली हुई है, पर उसनूं चेचक की जो महाभयानक बीमारी फैली सी, सो उस दे ग्रस्त विच आ करके छोटी उम्र में ही उन्होंने अखां की जोत चली गई। हरेक माँ बाप की इच्छा होंदी है कि वह अपने बच्चों नूं चंगी तालीम पढ़ा लिखा करके इस संसार दे विच अपना जीवन वधिया गुजारन, उच्ची तालीम दिवाउण का यतन करते हैं। इस तरह सरकार जो बापू केहर सिंह माता राज कौर की भी यह मन की इच्छा सी, क्योंकि वह अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र सन। सो जदों उन्होंने अखां की जोत चली गई, रोशनी चली गई, बहुत मन विच ख्यालात उत्पन्न होने लगे कि हुण की कीता जावे। पर लेकिन पिंड कुलार दे ही जो गुरु घर विच गुरु घर के ग्रंथी सिंह साहबान जो प्रचार करा करते, बच्चों को तालीम दिया करते, उन्होंने कोले
ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੌਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੌਦਰ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ, ਨੇਤਰਹੀਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਉਸ ਦੌਦਰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਦਰ ਗਏ ਤੇ 1934 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਉਸਤਾਦ ਝੰਡੇ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤਸੀਨ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 73 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚੂੜਕਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਪੁਰ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦਿਸਦੀ ਜਾਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਮਾ ਤੋਂ, ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਪਾ ਰਾਮਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਹੈ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਬਲ ਐਮਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, 5 ਭੂਤ ਸ੍ਰੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ
संत बाबा प्रसन्न जी का संस्कार गुरुद्वारा अंगीठा साहिब भावे मस्तोड़ा साहब उन्होंने आप गुरुद्वारा गुरसागर बनाया, अकाल डिग्री कॉलेज बनया, स्कूल बनाए। इस तरह भाव उच्च संसारी जी उच्च विद्या सी वो भी विद्यार्थियों को देनी की। उन्होंने याद में ही बेहनवा वालों गुरुद्वारा अंगीठा साहब जिथे संस्कार किया गया वो होंद विच आया। उत्थे भी विद्याला संगीत विद्याला चलता है। उत्थे 3 बार राणी जसवंत सिंह जी होना ने विद्यालय में जाके सेवा निभाई। इस तरह मुल्लापुर दाखा जो कस्बा है लुधियाने जिले के उत्थे गुरुद्वारा सिंह साहब उत्थे रह के भी उस्ताद जी ने जो गुरमति संगीत की विद्या दी दास उन्होंने उस स्थान पर बचपन में तकरीबन 9 साल की उम्र से जो दास उत्थे उन्होंने कोले गुरमति विद्या लैण वास्ते संगीत अकैडमी विद्यालय के दाखिल होया सी। फिर मस्तोड़ा साहब आए उन्होंने नाल ही फिर इस तरह उस तो बाद वो जो बड़ी सिख संगत कलकत्ता है उत्थे भी उन्होंने गुरमति विद्या दी। मेरा कहने तो भाव बेअंत जगह पे जा करके गुरु घर की महान जी विद्या है। ये दमदमी टकसाल के हैडकुआटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहते विखे 1975 तो लैके 1979 तक लगातार उत्थे गुरमति विद्या की दात बख्शिश की। सो इस तरह फिर वो सिंगापुर मलेशिया वगैरह में भी जाके विद्यार्थियों गुरमति विद्या दी। कनेडा में भी आए कह भी रहे कि कुछ समय गुरु घर की महान विद्या बख्शिश की। अखीर वो फिर जो शरीफ होया पैदा होया पंजाब वापस चले गए तो 1983 24 दिसंबर वाले दिन अपना पंजपूत शरीर त्याग गए। उन्होंने शागिर्द जे मैं गिनती कर लगा तो गुरमुख प्यार बहुत लंबा समा लग जाता है। बहुत याद नहीं है क्योंकि कल भी उन्होंने पिंड नगर कुलारा विखे उन्होंने याद में उन्होंने शागिर्दा ने पिंड दियां संगतां ने तो उन्होंने याद को ताज़ा करदे होए अखंड पाठ प्रकाश करवा करके 28 तरीक भाव के दिन ही उत्थे जो भारी महान कीर्तन दरबार किया गया, ढाडी दरबार होया। सो उन्होंने जिहड़े शागिर्द सी उन्होंने विचों मैं तुहानूं चंद जिहड़े नामवर जिन्हां दा बहुत बड़ा नाम है जिहड़े जो सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब जी विखे जिथे जिथे भी महाराज के बड़े स्थान ने ते उन्हां स्थानां उत्ते तख्त साहिबानां दे उत्ते उस्ताद जी के शागिर्दां ने महान कीर्तन की सेवा निभाई। 1984 के विच भाई अमरीक सिंह जी जिहड़े सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के हजूरी रागी सीगे उन्होंने शहादत का उत्थे जाम पीना पिया। वो भी उस्ताद जी के शागिर्द सी। भाई मुकंद सिंह जी जो महान कौलवंत सन, भाई कुलवंत सिंह जी जो ये भी सारे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के हजूरी रागी सन। भाई लाल सिंह जी जो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाले के हजूरी रागी रहे हैं। भाई राम सिंह जी तख्त श्री अनंदपुर साहिब जी के हजूरी रागी रहे हैं। सो एक नहीं बेअंत ऐसिया रूहां जड़ियां हैं अज भी जो वक्रो वक्रे देशों के जर्मन के बैठे ने सरकार जो भाई हरभजन सिंह जी और भाई महा सिंह जी जो उस्ताद जी के शागिर्द सी जो उत्थे हुण वो सेवा निभा रहे हैं। इस तरह इंग्लैंड के उस्ताद जी के शागिर्द भाई अमरीक सिंह जी जो जिन्होंने उत्थे सारे सिंह काला करके जानते सा वो भी उत्थे सेवा निभा रहे हैं। भाई अमरीक सिंह पिंड मोही तो ने वो भी इंग्लैंड में सेवा निभा रहे हैं। भाई गुरशरण सिंह जी वो भी इंग्लैंड सेवा निभा रहे हैं संत कीर्तन की संगतां दे विच विचर के। इस तरह गुरु साहब सच्चे पातशाह की कृपा द्वारा बेअंत सिंह जिहड़े सी वो सेवा निभाउंदे हन कि कनेडा विच भाई जो स्वर्ण सिंह जी जिन्हां दा दुनिया के सब तो बड़ा लम्मा गाड़ा है वो कनेडा विच रहिंदे ने। वो भी उस्ताद जी के महान शागिर्दां विचों शागिर्द हैं। सो जिन्हां नूं असीं महंत जी कहते हैं। सो इस तरह भाई बलजिंदर सिंह जी बाल सिंह पंछी होए दुनिया अपना सिख कौम के महान ढाडी उन्होंने नाल जो वो सरंगी वादक सी भाई बलजिंदर सिंह जी कनेडा ने वो भी उस्ताद जी के शागिर्द सी।
सो मेरा कहने तो भाव बेअंत उन्हां दे शागिर्द भाई महेंद्रजीत सिंह जो भी कनेडा च सेवा निभा रहे ने, वो भी उन्हां दे शागिर्द सन। सो जिन्हां कोलों बहुत विद्या प्राप्त उस्ताद जी दे शागिर्दां ने कीती ते दोनों प्यारे उन्हां दा जो सालाना जुड़न वाला 37वां 38 साल हो गए ने, पर 37वीं उन्हां दी याद नूं ताज़ा करन दे लई अज आपां जो बड़े प्यार दे नाल इस गुरु घर विच जो श्रद्धा भावना के नाल उस इलाके दे ही इस स्थान के उत्ते काफ़ी संगत जुड़ी है, जिवें घट्टां तो सुधार तो इस तरह बोपा राय तो। सो संगतां मेरा कहण तो भाव इस गुरु घर के नाल बहुत प्रेम प्यार है। सो गुरु साहब की कृपा बख्शिश है। आओ उस्ताद जी की याद विच जो उपराला किया है उन्होंने होनहार सुपुत्र भाई हरकीरत सिंह जी जो पंजाब गार्डियन अखबार छपदा है कनेडा दे विच कह अपना सरी ते ओह उन्हां दे एडिटर आप हैं, आप संपादक हैं। सो उन्हां दे बेटे ने छोटे, उन्हां दी 2 बेटियां सन, 2 बेटे सन। सो मेरा कहण तो भाव उन्होंने अपनी जिंदगी विच जिथे बाकी विद्यार्थियों को गुरु घर दे नाल जोड़िया, महान बख्शिशां कीतियां, एक नहीं उन्हां दा जीवन परोपकारी सी। उन्होंने परोपकार करदे मंगते जिहड़े कई मंगते दोनों प्यारिओ गड्डी विच मंगया करदे, जो किते सफर करदे ऐसा कोई प्रेमी मिल जाना उन्होंने प्रेम नाल समझाउणा भी तू ये काम ना कर, मंग ना, तू मेरे कोले आ, तैनूं असीं गुरु घर की विद्या प्राप्त करवाईए। आपदे कोलों उस सारा दोनों प्यारिओ जो खर्चा भी देना ऐसा परोपकारी उन्हां दा जीवन सी उस्ताद जसवंत सिंह जी का। इस तरह जिन्ने अंगहीन होंदे, ब्लाइंड होंदे, नेत्रहीन होंदे, उन्होंने विशेष तौर पर प्यार कह करते। जेडे विद्यार्थी अपना खर्चा नहीं सी दे सकते उन्हों का आप भी खर्चा कराया करते सन। ऐसा जीवन सी उस महापुरुष का। सब जो गुरु प्यारे रागी जसवंत सिंह जी जिन्हों का प्रेम दमनी टकसाल के नाल संत बाबा गुरबचन सिंह जी जो दमनी टकसाल के 12वें मुखी सी उन्होंने दे नाल बेअंत प्यार सी। उस प्यार का सदका संत बाबा करतार सिंह जो 13वें जहदार सी उन्होंने जो उस्ताद जी को कहा कि तुसीं लहते आके जो सिक्ख्या विद्यार्थियों कीर्तन भी दिओ, उस वे कहा कि महापुरुष को तुसीं स्थान बनाओ। उदों स्थान होने च नहीं सीगा, विद्यालय होने च नहीं सी। ते दोनों प्यारे ये 1972 की गल है जो मुल्लापुर दाखा विखे महापुरुष इलाके प्रचार करने वास्ते आया करते सन। पर लेकिन उन्होंने वचन कि उन्होंने जो विद्यालय बना दिता तो फिर कहा कि रागी जी हम तुसीं आओ मेहते विखे। तो आप जी 1975 मसवाणा साहब की संगत तो बड़े प्यार नाल बधाई लैके तो उत्थे मेहते पहुंचे ते 83 तक। उस तो बाद उन्होंने ही बूटा लाया हुआ भाई पूर्ण सिंह जो हम थोड़े दिन समा होया चढ़ाई करके ने उन्होंने लगातार उत्थे विद्यार्थियों सेवा कीर्तन की जो दी एक बड़ी दात है। महाराज के बचन ने दोनों प्यारिओ विद्या विचारिता परोपकारी। भाई गुरदास साहब के बचन हैं कहते हैं जैसे सत मंदिर कंचन के उसार भी ने। कोई मनुख सत मंदिर जिहड़े मकान ने वो सोने के बना के दान कर दे, पर पैसा पाना से कोई शब्द सिखाएगा इन्ना फल मिलता है कि गुरु के सिख गुरु की बाणी का शब्द उस करवा देना। एक बेअंत ऐसिया जो रूहां हैं जिन्हों ने महान इस संसार के अपना नाम ना खटिया है। सो उन्होंने शिकत सी चंगे चंगे स्थानों पर अज भी सेवा निभा रहे हैं। गुरु साहब कृपा कर आओ उन्होंने याद आप हाजरी भर रहे हैं। तो मैं बेनतियां संकोच नहीं करा क्योंकि उन्होंने जीवन जिस वक्त तो विछाउण का चक्र करे जिवें मिश्री जी होती है उन्होंने जितों मर्जी चखो तो मिठी है। उस्ताद जी का जीवन भी एक ऐसा सी उन्होंने जीवन जितों भी देखिए गुणा ही गुणा की खान सी। तो बेअंत गुरु साहब की कृपा बख्शिश उस उस्ताद जी की याद बचाओ। उन्होंने ही जिहड़ियां बंदिशां ने सानूं सिखाईयां होईयां दास ने अपने पोतरियां नूं बंदिशां नूं सिखाया है। सो आओ पहला तो क्योंकि भावें बंदिशां जिहड़ियां ने रागां विच ने सारियां वो राग विद्या करवाया करदे सी ते राग का टाइम हुंदा है। टाइम तो बगैर राग जिहड़ा है दोनों प्यारिओ जिहड़े
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ, ਸਵੇਰ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਦੇ ਸੁਹਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅੰਗ ਹੈ 726 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਦਸਤ, 14 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। So
साहब जी का पावन ये शब्द जिहदे विच समੁੱਚੀ मानवता नूं उपदेश है, चेतना है तो चेत लै, निस दिन मह प्राणी। दिन रात समा बीतदा जा रहा, कहते दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आप कटा कल छीजै, काल हेरी फिरै बत जो कहो कबल विद कीजै। जो दिन आवे सो दिन जाई, चेतना है तो चेत है। जीव उस परमेश्वर वाहिगुरू की याद नूं याद कर, उहदे नाल जुड़। क्यों महाराज कहते छिन छिन औध विहात है, एक एक छिन माता प्रीत करे पुत खाए। मां अपने बच्चों वाल देख के बहुत लाड लड़ाउंदी है। भगत कबीर साहब का पावन उपदेश है, जननी जानत सुत बड़ा होत है। मां प्यार नाल कह रही है मेरा बच्चा मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, पर दूसरा पक्ष नहीं कहते कि याद कर दी, जननी जानत सुत बड़ा होता है। इतना तो ना जानना कि दिन दिन घटता है, उसकी उम्र घटती जा रही है। हर जी महाराज कहते गुरु तेग बहादुर साहब जी छिन छिन औध विहात है। कहते किस तरह टूटे घट ज्यों पानी, घड़ा पानी का भरिया छोटा जिहा किते शेक हो गया है, त्रेड़ आ गई है घड़े नूं, टिप टिप करके वो सारा पानी उस घड़े दे विचों गुजर गया है, खाली हो गया है। इसी तरह घट रूपी जिहड़ा घड़ा रूपी साडा शरीर है, दिना प्रति गुरु प्यारिओ दिन रात सवास आउंदे हन, ये बीतते जा रहे हैं। छिन छिन औध विहात है, टूटे घट ज्यों पानी, हर गुण कहे ना गावही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लाल ते लागता है मरण पछाना। महाराज कहते अजू कछ बिगड़े नहीं, अजे भी कुछ बिगड़िया नहीं, हुण भी ध्यान करना। अजू कछ बिगड़े नहीं, जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक कह भजन ते निर्भय पद पावे। ये उपदेश धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरु की बाणी विच साडी समुची मानवता नूं मनुखता नूं संदेश के उपदेश है। इस तलंग राग दे विच महाराज जी का उच्चारण किया पावन शब्द, संगीत की बंश विच भी ये तलंग राग ही सी, जो स्वर्गवासी सचखंडवासी उस्ताद रागी जसवंत सिंह जी तीपर जी ने अपने विद्यार्थियों अनेकों को ये शब्द सिखाया, जो अज उन्होंने याद हमेशा ये शब्दां राही इन्हां बंशां राही हमेशा जिउंदी रहेगी। आओ अगला शब्द जो आपां शब्द श्रवण करिए भगत फरीद साहब जी का। भगत फरीद साहब जी खीरलियां पंक्तियां में शब्द कहते हैं, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। ये परमेश्वर वायु तेरे दर तो मैं मंगदा हाँ, असीं सारे मंगते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, हाँ सारे मंगते, क्योंकि इस संसार में जिन्हें भी ने महाराज के पातशाह जी कहते हैं भाई कि उस भावें कोई किड्डे बड़े भी ओहदा मालक हो जाए। एक छोटी जी उदाहरण मैं आप दे नाल साझी करके इस शब्द नूं आपां प्यार नाल सरवण करिए। गर्मी का महीना है, जिमीदार भरा खेत च काम कर रहा है, जेठ हाड़ की तपश है, समय का बादशाह उस इलाके का उस मतलब कि जिथे एक किसान काम कर रहा है, वो रईयत सी, उतों का राजा कितने शिकार वास्ते निकलिया तो वो अपने साथियों तो बिछड़ गया। काफ़ी तपश के आउण करके उन्हें प्यास लगी, पानी की बड़ी किल्लत सी। हुण तां मां की कृपा है, जिहड़े पुराने गुरु प्यारे बजुर्ग बैठे ने ये भी जानते हैं, ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भी महाराज ने वचन कीते हैं कि मारवाड़ जैसे नीलवाड़ था, मारवाड़ दे विच अज भी किल्लत है, मारवाड़ जैसे नीलवाड़ हा, बेलवाड़ हा,
पानी नूं प्यास बुझाउण वास्ते लोड़दा है, पर लेकिन दूर वो किसान देखिया भी खेत विच काम कर रहा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ आया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ लगा मित्रा मैं पानी पीना, मैनूं बड़ी प्यास लगी है। ब्याहवान सी जो किसान सी, उन्हें कहा भी मेरा घड़ा पानी का ठंडा होया पिया, तुसीं जरूर छको। ठंडे घड़े विचों उस गर्मी दे विच उस राजे नूं कहंदे उस जिमीदार भरा ने, किसान ने जल छकाया। बड़ा तृप्त होया, खुश होया, जान लग्या। उन्होंने दस्या कि मैं इस रियासत का राजा हाँ, आ मेरी निशानी शाप है, मुंदरी कह दिए, शाप कह दिए, ले लै। जदों तैनूं किसी चीज़ की लोड़ होवे तां मेरे दरबार दे विच हाजिर होवीं। जे तैनूं कोई आउण तों रोकेगा तां उहनूं मेरी निशानी दिखा देवी, तैनूं सत्कार नाल मेरे कोल लैके आउणगे। कहण लगा ठीक है जी, चलो ये निशानी कच्ची कोले किते सोना पड़िया। वो जिमीदार भरा किसान उस राजे दे कोल जाण दा यतन कर रहा है। ते को समा सी वो मुसलमानी शरह दे नाल जिहड़ा इबादत करने वाला राजा सी, कहते नमाज पढ़ रहा है, किते हाथ उपर नूं कर रहा है, किते थल्ले नूं कर रहा है, किते मतलब कि लम्मा पै के मथा टेक रहा है। ते वो किसान भरा कहने लगा मिलना है। वो कहने लगे भी जो उन्होंने मुंदरी की कह लगे ठीक है, भी खड़ राजा जो इबादत करता है, उन्हें पूछा क्यों करता है। कहते अपने राज भाग की ये मंग करता है। कहता मंगता है। वो कहने लगे हाँ ये मंगता, अपने राज भाग की सुख मंगता है। कहने लगा मना फिर मैं मंग के को की मंगना है, जिहदे कोल ये मंगदा मैं उसे कोई मंगा। मेरा कहने तो भाव इस संसार के उत्ते जो भी जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम, सारे परमेश्वर दाता देने वाला है। ते भगत फरीद साहब जी कहते हैं ये परमेश्वर वाहिगुरू जी शेख फरीद है खैर दीजै बंदगी, मैनू खैर पाओ, मैनू बंदगी की खैर दिओ। ਉਹਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਬਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕੁਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲ ਦਾਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਬਿਸਰਿਆ ਦਿਲ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਏ ਭਾਰਤੀਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। जे मन होर मुख होर से कांटे कचिया। आओ पावन शब्द नाल जुड़िए। उस्ताद जी की बड़ी प्यारी बंदिश उन्होंने की याद में ताजा करदे होया इन्हां छोटे छोटे बच्चों पासों काका जाप सिंह, आद सिंह, भै सिंह, हीरा सिंह, आओ इन्हां दी रस्म को प्यार नाल सरवण करिए।
Se
रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए भारतीए। महाराज भगतां दी रसना तो कहते ने, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जने दी माओ आए सफर से। वो मां धन है, वो पिता धन है, वो कुल धन है जिथे इहो जिहे परोपकारी जीव पैदा होंदे हन। समा सीमित होने करके बंदिशां तां कई उन्हां दियां गायन करन नूं मन करदा सी। आउण वाले समय विच विचारां भी गावांगे। जिथे अज आपां उस्ताद जी की याद विच जुड़े हाँ, उत्थे गुरमुख प्यारो भगत रविदास जी का प्रकाश दिहाड़ा भी है, जिन्होंने अपने जीवन काल में उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने हमेशा गुणा गाया, वचन कीते बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यो जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म जिहड़ा तुहाडे लेखे विच है, तुहाडे चरणां विच है। सो समा सीमित होने करके जो भगत रविदास जी के पवित्र पावन शब्दों को भी शौक तो अंग्रेज कर रहा हाँ। अज विशेष तौर पर भाई रणजीत सिंह जी जो गोपा रामत जो परिवार है, जिन्हों के नाल गुरसिੱਖੀ के नाते बहुत प्रेम प्यार बनया होया है, जिन्हों के प्रेम सदका ही इस पवित्र स्थान से दास अपने घरों तकरीबन 65 मील पै जाता रस्ता। तो जे आप इंडिया के नाल इसनूं देखिए तो तकरीबन 100 किलोमीटर तो उत्ते पै जाता है। 100 किलोमीटर जान तो 100 किलोमीटर आउण, 200 किलोमीटर से आके इस पवित्र स्थान से धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को आके नमस्कार करने का जो महाराज जी ने उपराला बख्शिश किया, इन्होंने परिवारों की ही गुरमुख प्यारे प्रेमता के नाल है, प्यार के नाल है, जो हमेशा ही बहुत प्यार सत्कार भाई रणजीत सिंह जी दियाल जो गोपारामा तो हम परिवार वो दिंदे ने। ते गुरु साहब कृपा करन उस इलाके की संगतां महाराज ने कृपा की है कि गुरसिखां एको प्यार गुरमितां पुत्तां भाइयां, ये प्यार होना चाहिए गुरसिख का। महाराज के पासे जी कहते सगे भैन भरावां दा हुंदा है, गुरसिखां एको प्यार। सो उस प्यार का सदका ही इत्थे आ करके हर गुरमुख प्यारे ऐतवार नूं विशेष जो हफ्तावारी समागम आपां रखते हाँ, गुरु साहब की हजूरी विच आके हाजरी भरन का उपराला करन का यतन करीदा है। सबनूं कृपा करन ये महाराज के चरणों में बेनती, जिन्ना चिर प्यार सत्कार बनया है इस तरह प्यार के नाल तुहाडे चरणों में गुरु साहब जी के चरणों में आ करके हाजरी भरन का महाराज समा बख्शण। मेरी कहण तो भाव मुराद भाई रणजीत सिंह जी जो दियाल परिवार है उन्होंने पोतरे का जन्म दिंदी है फतेह सिंह का। ते गुरु साहब कृपा करन आपने संगत रूप मिल के उस होनहार बच्चे के लिए अरदास बेनती भी करनी है। ते ये पावन शब्द आपां धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया जदों भी ये समागम जन्मदिन का आउंदा है तो प्यार के नाल संगतां शब्द पढ़दियां ने, पूता माता की आशीष निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। एक गुरु अर्जन साहब महाराज के पातशाह जी ने जो पावन शब्द उच्चारण किया है, उत्थान का महाप्रभु पढ़ाया करते सन। उत्थान का मीन मतलब अर्थ ये है, ये शब्द किस प्रकार उच्चारण किया है, ये शब्द कितने उच्चारण किया है, ये अखरी अर्थ की ने, भाव अर्थ की ने, अंतिम अर्थ की ने। कथा जी है ना, कथा दो अखरां दे शब्द है, पर लेकिन करना कितना कोई पैंदा, कितना को सीखना पढ़ना पैंदा है। जिवें मानिया दाल बनाउंदी है, दाल दो अखरां दे शब्द है। दाल बनाने वास्ते चूल्हा लियाओ, लकड़ा लियाओ, गैस लियाओ, फिर नून मिर्च मसाला हल्दी लियाओ, घ्यो लियाओ, गंढे लियाओ, कितना कुछ लियाओ।
ਫਿਰ ਦਾਲ ਇੱਕ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਆ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵੋ, ਸਿਆਰੀ ਮਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਕਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਕ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਿਮਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਆਵਰ ਇਉਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੱਸਿਆ ਘੜੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਮਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਆਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਸ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਕਾਕਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। This
भजो जगदीश। ये मां उही असीस दे सकती है जिहड़ी आप जपदी है परमेश्वर के नाम नूं। जे कोई आप विद्या पढ़िया होगा ताही अगे विद्या पढ़ा सकता हो। जे कोई आप काम सीखा होगा ताही अगे वो काम सिखा सकता है। जेड़ी मां आप उस परमेश्वर वाहिगुरू का नाम जपदी होगी उहदे नाल जुड़दी होगी उही असीस होगी ना कि पुत्रा तैनूं उस परमेश्वर वाहिगुरू का नाम न दसे। बहुत घट ने माना इस को गुरु साहब कृपा करन सानू गुरु की बाणी दे नाल जुड़न दा, गुरु की बाणी का उपदेश कमाउण दा बल ते सतगुरु जी उद्यम बख्शिश करन। काका फतेह सिंह सत्कारयोग सरदार रणजीत सिंह जी दिओल समूह परिवार का होनहार बेटा बच्चा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ने गुरु के शब्द राही अरदास बेनती की है। सच्चे पातशाह कृपा करनी काका फतेह सिंह नूं दीर्घायु, माता पिता का आग्याकारी, देश कौम ते खालसा पंथ की सेवा तत्पर रह के करने की बलबुद्धि प्रदान करनी, संसारी उच्च विद्या ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ब्रह्म विद्या की दात की बख्शिश करनी। ये महाराज के चरणों में अरदास बेनती है। सो सतगुरु जी कृपा करन आने वाले जो ऐतवार नूं आपां ने इस तरह सत्कारयोग युवराज सिंह के जन्मदिन की खुशी नूं मुखारदे होया जो परिवार वालों सहज पाठ किए गए हैं उन्होंने के भोग भी पाए जाएंगे। तो परिवार वालों भाई जगदीप सिंह जी परिवार वालों लंगरां की सेवा भी होगी। गुरु घर के सेवादार गुरु घर के ग्रंथी सिंह साहबान बाबा मान सिंह जी जो इत्थे बड़े प्यार सत्कार के नाल सेवा निभा रहे हैं उन्हां दा भी जन्मदिन है 7 अप्रैल नूं 7 मार्च नूं। सो उन्होंने भी महाराज के चरणों में बेनती जो करनी है आप सारे ने मिल के उन्होंने भी सरीरक तौर पर तंदुरुस्ती की दात इस तरह गुरु घर की महान सेवा सतगुरु जी करने की बलबुद्धि प्रदान करन। उन्होंने संगतां वास्ते कहने लगे मेरे मन की इच्छा भावना है कि जिहड़ी संगतां ही सारी गुरु साहब की बख्शिश है, संगतां की रहमतां हैं जो किरत कमाई इत्थे सेवा निभाउंदे हन, तुसीं बख्शिशां करदे हो उन्होंने माइक तौर पर जो कहते मैं सारी संगत वास्ते पीजे का लंगर मेरे मन की इच्छा है कि जिथे भाई जगदीश ने भी सेवा निभानी है लंगर की उत्थे नाल जिहड़ी सेवा है पीजे की वो मेरे मन की कहने इच्छा है करने की। मैं चलो बहुत वधिया गल है गुरु कृपा करे इस तरह प्यार सत्कार श्रद्धा भावना के नाल ते जे भाई जगदीश सिंह जी चाहण तां अगले ऐतवार नूं लंगर की सेवा निभा लैण क्योंकि असल सहज पाठ है। सहज पाठ भाई जगदीप सिंह के परिवार वालों है तो लंगर की सेवा पीजे की सेवा भाई बाबा मान सिंह जी होना वालों है। सो ये बड़े प्यार सत्कार के नाल आपां ने इस तरह जिवें तुसीं हुण गुरु साहब की हजूरी विच प्यार सत्कार के नाल आए हो बैठे हो सरवण कर रहे हो इस तरह आने वाले समय में भी आपां ने बढ़ चढ़ के हाजिरियां भरनियां ने। सतगुरु जी कृपा करन भुल्लां चुकां दी खिमा अज विशेष तौर पर उस्ताद रागी जसवंत सिंह जी कुलार जी की सलाना याद नूं जो एक दीवान समर्पित आपां ने कीता है अते सत्कारयोग भगत रविदास जी का प्रकाश दिहाड़ा भी मनाया है। सतगुरु कृपा करने इस तरह भाई रणजीत सिंह जी दिओल उन्होंने होनहार पोतरे के जन्म की खुशी में मुख राजा महाराज चरणों में हाजिरी भरी है। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्श देनी। आओ मिलके अनंद शब्द बाणी का सारे मिलके जाप करिए। सतगुरु जी कृपा बख्शिश करनी।